ایک بہت ہی گمبھیر ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں. ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں جس پہ لوگوں کے بڑے سوالات ہیں. ہم بات کر رہے ہیں اے آئی کی, اور جب اے آئی کی ہم بات کرتے ہیں تو یہ کہا جا رہا ہے, سوچا یہ جاتا ہے, اب یہ کتنا پرسپشن ٹھیک ہے یا یہ غلط ہے کہ بھئی اے آئی آپ کی جابز لے لے گی. یعنی آپ ینگسٹر سے بات کریں, یوتھ سے بات کریں, کسی سے بھی بات کریں, وہ کہتے ہیں یار اے آئی آ گئی, اب کہاں تک ٹیکنالوجی, نیور اینڈنگ سلسلہ ہے یہ. تو جو ہیومن انوالومنٹ ہے نا, ہیومن ریسورس جو ہے, اس کو یہ افیکٹ کرے گی, اور پھر لوگ بے روزگار ہو جائیں گے. بے روزگار ہوں گے تو ظاہر ہے ان کے پاس ان کی معاشی صورتحال خراب ہوتی جائے گی. تو اچھا, اس میں یہ ایک رپورٹ آئی ہے, رپورٹ میں بتایا گیا کہ اے آئی ٹیکنالوجی ابھی اس قابل نہیں ہوئی ہے کہ انسانوں کی جگہ لے سکے. رپورٹ میں 2800 سے زائد ملازمتوں سے جڑی صلاحیتوں کا جائزہ لینے پر پتہ چلا کہ ایسا امکان نہ ہونے کے برابر ہے کہ اے آئی ان کا متبادل ہے. تو یہ رپورٹ بھی ہے. خیر, اس بارے مزید ہم نے کچھ بات کرنی ہے, ہمارے ساتھ گیسٹ بھی ہیں. جی السلام علیکم عدنان سعید, کیسے ہیں آپ؟ Very well, جی. Thank you very much for having me on the show. اچھا جی, تو اے آئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس, if people don't know, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بارے میں کچھ بتائیے کہ یہ جو بات کہی گئی ہے کہ یہ جابس ریپلیس کر دے گی, کہاں کس حد تک یہ درست ثابت ہو سکتی ہے ان دا فیوچر؟ دیکھیں جی, یہ جو کنسیپشن ہے نا کہ اے آئی کسی کی نوکری ریپلیس کر دے گا, وہ اے آئی جاب ریپلیس نہیں کرے گا ایک بندے کی, اس کی نوکری نہیں جائے گی. ٹھیک ہے. اس بندے کی نوکری جائے گی جس نے اے آئی کو اڈاپٹ نہیں کیا, اے آئی کو یوز کرنا نہیں سیکھا. کل کو کوئی دوسرے صاحب آتے ہیں, وہ اے آئی یوز کر رہے ہیں, وہ ایفیشینٹ ہیں, رائٹ, وہ انسان دوسرے انسان کی جاب لیں گے بیکاز ہی از ایفیشینٹ اینڈ ہی از یوزنگ ٹیکنالوجی, رائٹ. جس طرح جب کمپیوٹر آیا, رائٹ, تو لوگوں نے کمپیوٹر یوز کیا, اپنے اسکلس کو انہینس کیا. اے آئی بھی از اے ٹول. میں ابھی صبح کی ایک بات بتاتا ہوں آپ کو. آپ کے پروڈیوسر صاحب نے مجھے ایک لمبا چوڑا اسکرپٹ بھیج دیا اردو میں. اب میری اردو بہت ہی کمزور ہے, میں نے اس کو کاپی کیا, میں نے چیٹ جی پی ٹی 4 میں ڈالا, انگلش کا ٹرانسلیشن لیا, میں نے پڑھ لیا. Now AI is a tool. Exactly. اب آپ اس کو کس طرح استعمال کرتے ہیں, کس طرح یوز کرتے ہیں, یہ آپ کے اوپر ہے. جیسے اس میں یہ مثال دی جاتی ہے, جیسے ایچ آر میں ہوتا تھا کہ ڈرافٹنگ وغیرہ, اور پھر ایچ آر کی پوری ایک ٹیم ہوتی تھی. اب وہ ٹیم نہیں ہے, جو ایچ آر مینیجرز ہیں ان کا کردار ایسا نہیں رہا ہے. پھر ڈیٹا انالیسز میں بڑا ایک پوری ٹیم ہوتی تھی, 5-6 لوگ, ڈیٹا وہ نہیں ہو رہا ہے. وہ 5-6 لوگوں کو ریپلیس ہو شرنک ہوتی جا رہی ہے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں, میں آرگنائزیشن کا نام نہیں لوں گا. ہم ایک آرگنائزیشن کے لیے ایک اے آئی ایچ آر بڈی بنا رہے ہیں, ٹھیک ہے. وہ اس پاکستان کی بہت بڑی ایک آرگنائزیشن ہے, ان کے لیے ہمیں ایک ایچ آر بڈی بنا رہے ہیں. جس دن آپ اپنا اپوائنٹمنٹ لیٹر ایکسیپٹ کریں گے, اس دن آپ کو اس ایچ آر بڈی کا یوزر نیم لاگ ان مل جائے گا. ٹھیک ہے. آپ کو جو بات کرنی ہے, جو آپ ای میل کر کے یا فون کر کے ایچ آر والوں کو تنگ کرتے تھے کہ جی میرا میڈیکل الاؤنس کتنا بچ گیا, کتنا یوز ہو گیا, ایکسیٹرا ایکسیٹرا ایکسیٹرا, اس کی ضرورت نہیں پڑے گی. کچھ کمپنیز ہیں بہت بڑی ہیں, لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ جی کینٹین کدھر ہے, if کوئی مسئلہ ہو گیا اس نیچر کا تو کدھر جانا ہے. اس ایچ آر بڈی آپ کو پرسنل ایچ آر اسسٹنٹ آپ کی جیب میں ہوئے گا. ٹھیک ہے. تو آپ ٹیکنالوجی یوز کر رہے ہیں. ایک میں اور چھوٹی سی آپ کو مثال دوں. اپولو 11 جب چاند پہ گیا تھا, رائٹ, اس کے جو کمپیوٹرز تھے وہ یہ جو ہم موبائل فونز ہمارے ہاتھ میں ہیں, وہ رائٹ, اس سے بھی کم تھے, رائٹ. جی جی جی. سو اٹ از ٹیکنالوجی. ہاں, تو ابھی تو ہمارے والی چیزیں ڈر لگتا ہے نا. ہاں, یہ تو ایسا ہے, ظاہر چینج کو ریزسٹ کرتا ہے. یہ بتائیں کہ اے آئی ٹیچرز بھی آ رہے ہیں, ہم نے دیکھا بہت سے, ہم نے ایسے اداروں سے رابطہ بھی ہمارا ہوا, انہوں نے ہم سے کیا, اے آئی ٹیچر انٹروڈیوس کرا دیا انہوں نے. تو اس میں یہ کہتے ہیں کہ انسان کا انسان سے جو تعلق ہے نا, اب ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کی اگر بات کریں تو وہ جو لمپس ٹیچر, یعنی ٹیچر اگر آپ اسٹوڈنٹ کو ٹچ کر رہا ہے یا پھر اس کو ایکسپریشن اس کے نظر آ رہے ہیں, اس کی آنکھیں بات کر رہی ہیں, تو وہ اے آئی نہیں کر سکتا ہے. تو یہ لمیٹیشنز ہیں اس کی. لمیٹیشنز بالکل نہیں ہیں. یہاں آپ سر قطع کلامی معاف, دیکھیں ایک ایچ آر ٹیچر کو ایک پرسونا دیا جاتا ہے. جب آپ ایک روبوٹ بناتے ہیں, اسپیشلی اے آئی کو, اس کو آپ ٹرین کریں گے, ایک پرسونا دیا جائے گا, ٹھیک ہے. آپ کی ایک پرسنالٹی ہے, آپ کی پرسنالٹی کے میں جتنا اپنے کوڈ کر کے اے آئی ایجنٹ کو جتنا انہینس کروں گا, وہ آپ کا پرسونا بنے گا, رائٹ. اور دیکھیں ایک انسانی دماغ صرف 10% انسان اپنا دماغ یوز کرتا ہے. اے آئی از لمٹ لیس, دیر از نو لمٹ. جتنی آپ اس کو فیلنگز کہاں سے لائیں گے, فیلنگز کہاں سے لائیں گے. دیکھیں جی, فیلنگز
that is a very वैसे small बड़ा portion. स्कूल ऑफ थॉट है, यानी ये एक बड़ी एक फिलोसफिकल थोड़ी सी डिबेट है जो हम जिसमें बड़े बड़े जो टेक्नोलॉजी के माहिर हैं वो भी ये बात करते हैं यहाँ। जिस सवाल से हमने आगाज किया था उस सवाल का जवाब आपने खुद ही जो है वो नफी में दे दिया। रिप्लेस तो हो रही हैं चीजें, देखिए रिप्लेसमेंट तो हो रही है। देखिए रिप्लेसमेंट हो रही है, मैं आपको बता दूं, हम 2 ऑर्गेनाइजेशंस में जो कॉल सेंटर्स थे जी वो रिप्लेस हो रहे हैं एआई एजेंट्स के साथ। एग्जैक्टली। ठीक है जी। देखें, एक मशीन ना सोती है ना खाती है, ना वो खाने का ब्रेक ना सिगरेट का ब्रेक, बीवी से लड़ाई हो गई, हस्बैंड से लड़ाई हो गई, घर में कोई टेंशन है, इट इज स्ट्रेस फ्री, जी इट इज प्रोग्राम टू डू ए सर्टेन टास्क, जी और वो कर रही है। यस, कॉल सेंटर्स प्रोग्रामर्स आगे जाके कम हो जाएंगे, रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। जी। अब प्रोग्रामर्स ने अपने पैर पर खुद एक लात मारी है, ठीक है जी। अब एआई प्रोग्रामिंग कर रहा है। क्यों कर रहा है? बिकॉज प्रोग्रामर्स को कोई मसला आता था, वो ब्लॉग लिखते थे, कोई दूसरा बंदा, आपने उनको सोल्यूशन दे दिया। अब एआई उसी डेटा को स्क्रैप करके अपने आप को सीख रहा है और इनहेंस कर रहा है। ठीक है, जो काम एक बंदा 10 दिन में करता था, एआई 1 घंटे में कर रहा है। तो आपकी कॉस्ट रिड्यूस हो रही है और आपकी एफिशिएंसी बढ़ रही है। वो तो ठीक है, बात हमारी सवाल हमारा हाँ, यही था सवाल हमारा कि pivotal point ह्यूमंस यही को है। रिप्लेस कर रही है। एफिशिएंसी की बात से तो हम देखिए, बिल्कुल दुनिया में नहीं- जो है ना, ये तो देखिए, एक देयर विल बी ए हाँ जी। सर्टेन परसेंटेज, हाँ जी। आई एम नॉट सेइंग दे विल नॉट बी, इट विल नॉट बी जीरो, दे विल बी एक सर्टेन परसेंटेज के कुछ लोग रिप्लेस होंगे। बट देखिए, वो लोग वो रिप्लेस होंगे जो मैंने बिल्कुल शुरू में कहा, जो टूल का इस्तेमाल नहीं कर रहे। जो एग्जैक्टली नहीं, लेकिन एक जगह अगर 10 काम करते हैं लोग और एआई आ गया है वहां पे, तो 10 की जगह एक आदमी चाहिए, efficiency चाहे से स्किल्ड तो- ही हो, जी, वो जी, एक ही जी, चाहिए जी, होगा ना, देखिए 10 तो नहीं जी, चाहिए वो होंगे। एक तो चाहिए बाकी होगा। 9 क्या करेंगे? बाकी 9 जो हैं एआई स्किल्स अडॉप्ट करके उसी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ दूसरा काम कर सकते हैं। और वो Right? भी देखना है आगे की देखिए, क्या अच्छा, मेरे ख्याल से जॉब स्कोप्स जो है वो चेंज होने वाली है। देखिए जी, डायमेंशन थोड़ा सा- डायमेंशन ऑफ हाँ, डूइंग वर्क इज बहुत है। चेंजिंग। जी मैं आपको देखिए, कोविड से पहले जी देयर वाज नो वर्क फ्रॉम होम, देयर वाज नो हाइब्रिड वर्किंग। ऑनलाइन बिजनेसेस बहुत खुले ठीक है हैं। जी, आज आप फोन उठाते हैं, आप ऐप खोलते हैं, आप खाना मंगवा लेते हैं, आप ग्रोसरी मंगवा लेते हैं फूड पैंडा से। बिल्कुल। टूल है ना, जी 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 लोगों की रोजगार लगी हुई है ना माशाल्लाह से जी इसके जी ऊपर, जी। राइट। रेस्टोरेंट्स चल रहे हैं, होम किचन्स चल रहे हैं, राइडर्स की जॉब्स लगी है। राइट। मैं यही कह रहा हूँ कि देखिए, लोगों ने एआई को एक हवा बना लिया है, लोग डर गए। क्यों डरे? विच इज रॉन्ग। मैं कहता हूँ, एंड आई एनकरेज दिस, आवर कंपनी हैज पार्टनर्ड विद द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, ओके ठीक है, एंड हम स्टैनफोर्ड का एक 3 मंथ का डेडिकेटेड प्रोग्राम टुवर्ड्स एआई, पीएचडी से एमफिल्स को पढ़ा रहे हैं। ओके। इस मुल्क में 22,000 पीएचडी और एमफिल्स हैं। उन्होंने रिसर्च तो कर ली, अप्लाई किधर करें? एप्लीकेशन नहीं है। हाँ अच्छा, जैसे हम हेल्थ सेक्टर की बात करें तो ये भी कहा जा रहा है कि एआई के जरिए अब तो डॉक्टर, सर्जन्स वगैरह उनकी भी ज़रूरत नहीं रहेगी और वो एक प्रोग्रामिंग करके एआई के जरिए ऑपरेशंस भी होंगे। तो देखिए, ये इस बारे में, क्योंकि देखिए हमारी जिंदगी में तो नहीं होने बुलाने वाला का मकसद ही ये था कि लोगों के जहन में जो बातें हैं, जो सवालात हैं, हाँ जी। उनका जवाब उनको मिल सके, ताकि जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर हो। जिन्हों हॉस्पिटल कराची के अंदर साइबर नाइफ लगी हुई है, साइबर नाइफ, हाँ जी। बिल्कुल लगी हुई है, बिल्कुल बिल्कुल। इट्स अ स्टेट ऑफ आर्ट State of मशीन, the art, बिल्कुल ऐसे Absolutely. राइट। What runs it? ह्यूमंस। No. AI. Saber knife is a fully automated machine. जी। There is no human intervention. डॉक्टर सिर्फ स्क्रीन के पीछे बैठ के ये देख रहा होता है कि प्रोसीजर सही चल रहा है नहीं चल रहा। That's it. जो डॉक्टर 4 घंटे पे काम करता है, वो साइबर नाइफ 15 मिनट में काम कर रही है। तो देखिए वही End of the day तो वही सवाल का जवाब मिल रहा है हमें। अच्छा चलिए, Right. मैं जरा घुमाती हूँ सवाल। घुमाएं। मैं पूछना ये चाहती हूँ कि हमने प्रोज एंड कॉन्स की बात की, ठीक है। सो प्रोज तो हमें पता चल गया, एफिशिएंसी। कॉन्स का अगर आप जिक्र कर लें कि साइबर, इसकी वजह से, एआई की वजह से क्या क्या कॉन्स, हम लोग इतनी सारी हॉरर फिल्म्स देखते हैं, लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द मीडिया, जिसके अंदर बता डीप फेक्स भी आ गए। डीप फेक्स की रामिफिकेशंस हैं, जो अभी हम थोड़ी देर पहले उसका जिक्र कर रहे थे कि मरियम नवाज बिल्कुल, के बिल्कुल खिलाफ ऐसे, जो है इस बिल्कुल किस्म की ऐसे। डीप फेक बनी गई है, और इस तरह बहुत अनगिनत वाक़यात हैं। तो ये इसके ऊपर जो है रोकथाम कैसे हो सकती है? हाउ कैन वी पुट अ स्टॉप टू देखिए, दिस एटलीस्ट? बहुत से मुल्कों में हाँ जी एआई की पॉलिसीज आ गई हैं। आप यूरोप में देख लें, जी पाकिस्तान में हमारी जो एआई गवर्नेंस की पॉलिसी है, दैट इज अंडर डेवलपमेंट। अच्छा, ठीक है जी। हाँ। देखिए रीजन हर बीइंग देखिए एआई
इज ए टेक्नोलॉजी, ठीक है उसके प्रोज भी होंगे, कॉन्स भी होंगे, तो Absolutely. उसकी एक गाइडलाइंस होनी चाहिए। जी मीडिया इंडस्ट्री में पेमरा है, हाँ जी बैंकों के लिए स्टेट बैंक है, ठीक है ना जी, तो जो Regulatory bodies, जी। रेगुलेटरी बॉडी, तो एक वो चाहिए। नहीं मैं ये कह रही हूँ कि अभी तक क्यों अंडर डेवलपमेंट है, बिकॉज दुनिया भर में तो आ गई है और ये डीप फेक वाली कहानी तो काफी टाइम से चल रही जी, है। तो लेकिन फायरवॉल से ही नहीं निकल पा रहे ना, फायरवॉल्स और ये वो नेगेटिव आई वुड से कि देर आए दुरुस्त आए, जी। बट we're getting there. ओके सही, क्योंकि देखिए अभी इस तरह की एआई जनरेटेड वीडियोस बहुत ऐसी है कि आपको आप किसी को डिफेम करने के लिए उसको सोशल मीडिया का इस्तेमाल, गलत उसमें बड़ा तरीके से। गवर्नमेंट की बड़ी तरजीह आते हैं हाँ। कि हम सोशल मीडिया पर क्रैक डाउन जो ये हो रहा है, पाकिस्तान का एक नेगेटिव इमेज लोग दिखा रहे हैं, फिर ऐसा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं जो पाकिस्तान में हो नहीं रहा है, फिर सियासत का भी इन्वॉल्वमेंट इसमें है ज़्यादा। तो यहाँ रेगुलेशंस और यहाँ रूल्स क्या, यानी अभी बहुत ज़्यादा एक अर्ली स्टेज है इसकी, इस्टेब्लिश हो रहा है अभी ये सिस्टम, टाइम लगेगा इसमें हमें? देखिए सर, टेक्नोलॉजी का मिसयूज तो बड़े अरसे से हो रहा है। तो ये मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। आज से 15 साल 20 साल पहले कार्ड्स की स्किमिंग होती थी, चाइना, हांगकांग, सिंगापुर, जी जी अक्रॉस द वर्ल्ड। कार्ड मशीन नीचे रखी होती थी, पहले वो आपका कार्ड स्किमिंग मशीन पे लगाते थे, सर अप्रूवल नहीं है, कैन आई ट्राई अगेन, आप कहते थे जी। सेकंड टाइम वो असली मशीन पे घुमाते थे। तो वो देखिए, जब जब कोई नई चीज आएगी उसकी नेगेटिव चीजें भी लोग करेंगे, बिल्कुल ऑब्वियसली। तो आप फिंगर पॉइंट के जी ये एआई की वजह से हो रहा है, ये एआई कर रहा है, दिस इज यानी टोटली वो Very valid वक्त के point. साथ साथ फिल्टर होता जाएगा। जी। वेरी वेरी देखिए, वैलिड full पॉइंट। proven. As- in the organization that I work with, देखें, हमने एक प्रोडक्ट निकाला है कॉल्ड वॉइस बायोमेट्रिक, राइट? जी हर इंसान की वॉइस की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो अलग होती है, जी ठीक है? आप कॉल सेंटर फोन करते हैं किसी बैंक के, आप वालदा का नाम, शनाख्ती कार्ड बिल्कुल, नंबर, बिल्कुल। तारीख पैदाइश, 2-3 सवाल होते, 70-75 सेकंड निकल जाते हैं आपके। बिल्कुल। अब यही चीज इफ आपकी वॉइस प्रिंट है बैंक के पास, आपने कॉल किया, अस्सलाम वालेकुम जी, मैं अदनान बात कर रहा हूँ, मुझे 10,000 रुपये ट्रांसफर करने हैं मैडम को, वो हो जाएंगे। तो ये बैंकों की कॉस्ट, जहाँ 80 सेकंड की कॉल जाती वहाँ थी, भी वो जो था ना कॉल सेंटर ऑपरेटर, वो भी दूसरी चीज ये वो भी एआई ने मिमिक कर लिया ना। कर लिया ना, तो वो फिर भी क्या होगा? भाई देखिए, फिर मेरे मेरा- अकाउंट से तुम यार, अगर आपका I'm so अकाउंट हो गया तो वो तो इतना देखें, बहुत मुश्किल। रहने दीजिए। जब आप पीछे भी नहीं मिमिकिंग पड़ की बात करते हैं ना, एआई, जब आप मिमिकिंग की बात करते हैं, जी आप रिकॉर्डेड वॉइस, मिमिक्ड वॉइस, एआई जनरेटेड वॉइस, हाँ जी हर किसी चीज की फ्रीक्वेंसी अलग होती है। आपको सुनने में शायद ना ले, हाँ। बट जब आप उसको सिंथेसाइजर्स में लगाएंगे, यू कैन सी द डिफरेंस। ह्यूमन वॉइस डिफरेंट है। मैं अपनी वॉइस रिकॉर्ड करके प्ले करूं, रिजेक्ट हो जाएगी, डीप फेक करूं, रिजेक्ट हो जाएगी। दिस इज आवर एक्यूरेसी ऑन आवर प्रोडक्ट इज बट ये हो भी 90s। ये अनकरीब हो भी सकता है। हो और भी इस- सकता है और इस इसको रोका topic नहीं पे जा ना- सकता, लेकिन इसको चैनलाइज किया जा सकता है इस- कि वो जो हम बैलेंस की जो हम शुरू में हमने बात की थी, Absolutely. वो कायम रखना बहुत जरूरी है कि टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करें लेकिन इंसान की फलाह बहबूद के लिए। एग्जैक्टली। और इस बात इस देखिए, टॉपिक पे ना हाँ अनगिनत जी। कॉन्वर्सेशन हो देखिए, सकती है हमारी। और मुझे देखें, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हाँ जी वी एज अ नेशन, हाँ जी। हमें एआई जितनी जल्दी हम अडॉप्ट करेंगे, हाँ जी उतनी जल्दी ये जो डर है ना कि एआई हमारी नौकरी खा जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। खत्म हो एज अ टूल इसको इस्तेमाल करने की जरूरत है। थैंक यू बिल्कुल सो सही। मच अदनान, आपने हमें ज्वाइन Thank you किया। very ये गुफ्तगू जो है ये मजीद गुफ्तगू जारी हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल रह सकती है। बहुत और सारे इसमें सवालात थे। कैपिटलिस्ट अप्रोच है और एक सोशलिस्ट है। दोनों तो चीजें भाई हैं। सोशलिस्ट अप्रोच होगी तो चीजें सारी सही होंगी, टेक्नोलॉजी भी उसमें आएगी, लेकिन एक इंसान जो है ना वो फ्लरिश करेगा और उनका करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इस टेक्नोलॉजी के दौर में जब हम मोबाइल पे लगे रहते हैं, एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, तो यहाँ जब ये चीज़ें और आ जाएंगी तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एक हो तो जाएगा। कंपटीशन की फजा ऐसी होगी कि जो गिर गया उसको रोनते हुए आगे निकल जाओ, गिरते ऐसा है ना। शह सवारी में वरना लगा इंसान देखें, इंसान की जो जिम्मेदारी है ना, हाँ। एक बुनियादी जो इंसान होने का आपको एक टाइटल मिलता है, वो जी। तब मिलता है जब कोई अगर पीछे रह जाए या फिर कोई बैठ जाए या गिर जाए तो उसका हाथ पकड़ें, उसे उठाएं, अपने साथ मिला के चलाएं, हुकूकुल इबाद। बजाय इसके कि हाँ जो गिर गया उसको रोते हुए आगे निकल जी, जाए। ये तो जी, जानवरों जी, का हाँ, बिकॉज अशरफुल मखलूकात क्यों कहा गया है बिल्कुल हमें? ऐसे ही। तो एआई जरूर इस्तेमाल करें, ये हम नहीं कह रहे कि नहीं करनी, करें जरूर, लेकिन वो बैलेंस रखते हुए करें। तो ये